احسان کے مطلب کیا جانتے ہیں؟ حق کے واجب سے بڑھ کے دینا. کیا ہے؟ حق کے واجب سے بڑھ کے دینا. فرض ادا کرنا یہ تو آپ پر ہے، ضروری ہے. آپ نے نوافل بھی پڑھا تو یہ احسان ہے رب کے ساتھ، خالق کے ساتھ احسان ہے. آپ نے نوافل اور سنتوں کے اہتمام کیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں فرض اللہ کے لیے، سنت نبی کے لیے اور نفل اپنے لیے، یہ غلط بات ہے، غلط تقسیم ہے. یاد رکھو سب اللہ کے لیے پڑھنا ہے. فرائض کے علاوہ حق کے واجب سے بڑھ کے آپ نے عبادات کی ہے. فرض صدقہ تو زکات تو دینا ہے، ایکسٹرا آپ نے صدقہ کیا ہے، یہ احسان ہے. فرائض تو ادا کرنا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نے نوافل بھی ادا کیا، یہ احسان ہے. ایسے ہی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے. آپ کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی ہے. گھڑی کیا ٹائم ہے، 1 منٹ آگے نہیں بڑھنا ہے. وہ تو فرض آپ کو ادا کرنا ہے اور اللہ کے پاس جواب دینا ہے. 5 منٹ 10 منٹ زیادہ ڈیوٹی کر دو نا. ہاں یہ احسان ہے، یہ احسان ہے. یاد رکھو آپ چاہے کسی جگہ پڑھا رہے ہو، کہیں ڈیوٹی کر رہے ہو، کہیں خدمت کر رہے ہو، ناپ تول کے ڈیوٹی مت کیا کرو. یہ تو آپ پر فرض ہے، آپ نے جو کمٹ کیا ہے ایکسٹرا کرو. احسان اسی کا نام ہے، یہی احسان ہے. تب جا کر آپ کو فائدہ ہوگا، اللہ آپ کو چاہے گا، پسند کرے گا اور آپ کا فائدہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ہر جمعہ خطبہ ثانیہ میں پڑھی جانے والی آیت، جس آیت کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے جامع ترین آیت ہے، یعنی جس کے اندر ساری تعلیمات کو جمع کر دیا گیا ہے. بہت ہی جامع اور معنی آیت ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جمعہ کے دوسرے خطبے میں اس کو پڑھا کرتے تھے، اور وہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان.
یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور رشتے ناتوں کے حقوق کی ادائیگی کا۔ 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے بے حیائی، عریانی، فحاشی سے، والمنکر دوسری چیز شریعت کی نافرمانی سے، والبغی ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یعیدکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ و نصیحت کر رہا ہے، کاش کہ تم نصیحت حاصل کر لیتے، ان باتوں پر عمل پیرا ہو جاتے، ان 3 چیزوں پر عمل کرتے اور 3 چیزوں کو تم ترک کرتے تو تم کامیاب ہو جاتے۔ حاضرین، ان 6 باتوں کو بیان کرنے کے لیے وقت ناکافی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ان 3 باتوں میں سے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک چیز احسان کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں احسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، احسان کا تصور کیا ہے، کتنا وسیع ہے، کتنا براڈ ہے، کتنا بہت ہی عظیم الشان ہے۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ احسان کا مطلب اسلام کے نقطہ نظر سے کیا ہے۔ حاضرین، احسان جس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد سب سے عظیم چیز کی تعلیم دیتے ہوئے پہلے سوال کیے اسلام کیا ہے، اس کے بعد ایمان کیا ہے، اس کے بعد پوچھے احسان کیا ہے۔ یہ احسان گویا کہ اسلام ایمان سے اونچا درجہ ہے، تقوی کا سب سے اونچا معیار ہے، اسلام و ایمان کا سب سے اونچا معیار اور اونچے چوٹی کی بات ہے احسان۔ احسان سب سے عظیم صفت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بہت پسند ہے، اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ پسند ہے احسان۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد، تائید اور اللہ کی معیت اور سنگت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو احسان کو اپنا شیوا بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی سنگت ان لوگوں کے ساتھ ہیں مع الذین اتقوا، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اور متقی اور پرہیزگار کا اونچا معیار ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا اونچا معیار ہے۔ والذین هم محسنون، وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں۔ احسان اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور سبحان اللہ احسان کرنے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کی طرح نہ خوف لاحق ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، وہ جو اپنے تن من دھن کو اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے، اللہ کے سامنے تابع ہو جاتا ہے، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ احسان کرنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اپنے رب کے پاس مسلم ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات انجام کار، یعنی آخر کار انجام کار انہی لوگوں کے لیے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جو احسان کیے، احسان کی صفت کو اپنائے ہیں، ان کے لیے احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیادہ، یہ زیادہ کیا ہے؟ سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ احسان سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے احسانات، اور زیادہ سے مراد
कल क़यामत के मैदान में रब का दीदार, अल्लाह अकबर, रब का दीदार होगा। सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी करम फरमाई अल्लाह की तरफ से यही होगी कि रब्बे कायनात का बराए रास्त दीदार हो जाए। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। उसके लिए हमें चाहिए कि हम मोहसिन बने, मोहसिन बने, एहसान करने वाले बने। एहसान किसको कहा जाता है आइए हम मालूम करते हैं। अल्लाह ताला के रसूल ने हदीस में फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै। अल्लाह ताला ने एहसान को जरूरी करार दिया, वाजिब और फर्ज करार दिया, मैंडेटरी करार दिया है। हर चीज पर, हर चीज के लिए, हर चीज पर एहसान को जरूरी करार दिया गया। अल्लाह अकबर, सही मुस्लिम की हदीस है ये। एहसान हर एक पर जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है। इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै। एहसान के माने हैं किसी चीज को उम्दगी के साथ करना, कमाल दर्जे के साथ करना, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में करना, जिसको इंग्लिश में कहना चाहें तो परफेक्शन, परफेक्ट तरीके से करना, परफेक्शन होना चाहिए। हर चीज में परफेक्शन को जरूरी करार दिया है। जो भी काम तुम करते हो परफेक्ट तरीके से किया करो, इबादत करते हो परफेक्ट तरीके से किया करो, अकायद को अपनाया करो, परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। तुम्हारे अखलाक व किरदार में तुम परफेक्ट होना चाहिए। तुम दुनियावी एतबार से इल्म हुनर रखते हो, तुम अपने पेशे में हुनर में परफेक्ट बन जाओ। तुम्हारी जगह खाली है, तुम्हारी डिमांड आज भी है, तुम्हारे पास इल्म है, तुम इल्म के मैदान में परफेक्ट हो जाओ, तुम उसमें उम्दगी को पहुंच जाओ, कमाल दर्जे को पहुंच जाओ। याद रखो आज भी तुम्हारी मांग और डिमांड है हर मामले में, दीनी मामला हो, इबादत हो, मामलात हो, सलूक हो, दुनियावी मामलात हो, इल्म हुनर हो, चाहे काम काज ड्यूटी हो, हर चीज में एहसान को लाजमी करार दिया गया है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद अहले इल्म ने लिखा है कि एहसान की दो किस्में हैं। ये तो हुआ एहसान का माना। एहसान की दो किस्में हैं। एहसान एक अल्लाह के साथ, खालिक के साथ एहसान, और एक है मखलूक के साथ एहसान। खालिक के साथ एहसान, मखलूक के साथ एहसान। खालिक के साथ एहसान क्या है? हदीस से जिब्राइल को फिर उठा ले। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने सवाल किया एहसान क्या है, मल एहसान, तो एहसान क्या है? तो नबी ने उसका जवाब देते हुए फरमाया, अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, इस तरीके से तुम अल्लाह की इबादत करो। कुरान की तिलावत ऐसे करो, कुरान गोया कि तुम पे नाजिल हो रहा है। नमाज तुम ऐसे पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। याद रखो अकीदा ऐसे अपनाया करो, तुम्हारे दिलो दिमाग में पैवस्त रासिक और साबित हो जाए। हर चीज में याद रखो गोया कि अल्लाह तुम्हारे साथ हर वक्त है, अल्लाह तुम्हें हर वक्त देख रहा है, तुम अल्लाह को देख रहे हो, ये तसव्वुर रखा करो। अगर ये नहीं हो सकता है, अगर ये नहीं हो सकता है तो कम से कम ये तसव्वुर तो रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है ना? अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये याद रखिए, इस्लाम, ईमान और एहसान तकवे का ऊंचा मेयार है। सबसे ऊंचा मेयार क्या? एहसान है। क्या है? कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जहां कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, कुछ भी फैसला लो, कुछ भी कहते हुए, बोलते हुए, सोचते हुए, तोलते हुए, करते हुए, अंजाम देते हुए, सोचते हुए भी ये सोचो अल्लाह मेरे दिलों की बातों को जानने वाला है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह दिलों की बातों को जानने वाला है। कुछ कहते हुए कोई देख रहा नहीं देख रहा, सुन रहा नहीं सुन रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है। किसी के बारे में फैसला करते हुए याद रखो अल्लाह ताला को ये तसव्वुर में रखो, अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह के पास जाके जवाब देना पड़ेगा कि तुम अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। फेर अल्लाह वेरवर यू आर, जहां कहीं भी तुम हो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। याद रखो यही एहसान है, यही तकवे का ऊंचा मेयार है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए 7 दरवाजे बंद, मां बेटे का रिश्ता है,
वहां पर मक्के तक पहुंच नहीं सकती है, तन्हाई में देख ले कोई शक भी नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माअज़ल्लाह, अल्लाह मुझे देख रहा, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। याद रखो, यही है एहसान, यही है एहसान। कोई देखे ना देखे, अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। और इसी को कहा जाता है मुत्तकी की पहली सिफत है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकी लोगों के लिए ये कुरान हिदायतनामा है। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान क्या है? हम जब गैब में हो, कोई देखने वाला नहीं है, ये तसव्वुर हो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह लिख रहा है, अल्लाह के पास हिसाब है। याद रखो ये एहसान है, ये एहसान है। अल्लाह के साथ एहसान ये हुआ। अल्लाह के बंदों के साथ एहसान क्या है? अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा किया करो। और अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह एहसान के मकामात में बताऊंगा किस किस के साथ एहसान करना है, कैसे कैसे एहसान करना है। हमारे हुस्न सलूक एहसान के सबसे ज्यादा हकदार हमारे माँ बाप है, हमारे वालिदैन है, जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, कितनी मेहनतें की हैं। इस्लाम ने यह कहा, रब्बे कायनात ने बार बार ये याद दिलाया, अल्लाह के बाद अगर किसी का हक तुम पर आयद होता है, वो है तुम्हारे वालिदैन का हक है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू, ये अल्लाह का हक है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, एहसान करो ही लफ्ज है, एहसान का मामला किया करो। हाज़िरीन गिरामी, ये अल्लाह का फैसला है। फिर उसके बाद आगे बढ़ें। अल्लाह तबारक तआला ने एहसान के ताल्लुक से सूरह निसा में किस किस के साथ एहसान करना है सारी बातों को बयान किया है। इंसानों के साथ एहसान करो, जानवरों के साथ एहसान करो, जिन्नात के साथ एहसान करो, चरिंदे परिंदे दरिंदे हैवानात फिजा कायनात और नदी पहाड़ तालाब और यहां तक के नबातात हजर शजर, हर एक के साथ एहसान करो, हर एक के साथ एहसान करो। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम की तालीम है मेरे भाइयों। यहां तक के कहा दुश्मन के साथ भी एहसान करो, आगे बात आएगी इंशाअल्लाह। दुश्मन के साथ मैदान कारजार में, जंग के मैदान में एहसान करो, जानवर को ज़बह करते हुए एहसान करो, बोलते हुए एहसान करो, फैसले में एहसान किया करो, दावत और तबलीग में एहसान करो, तालीम और तरबियत में एहसान करो, इबादत में एहसान करो, हर चीज में एहसान, हर एक के साथ एहसान। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ें। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 36 में क्या फरमाया? वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ एहसान। वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान। और किसके साथ एहसान? वबिदिल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ एहसान। वल यतामा, यतीमों के साथ एहसान। वल मसाकिन, मिस्किनों के साथ एहसान। वल जारी दिल कुर्बा, वो पड़ोसी जो रिश्तेदार भी हैं उसके साथ एहसान। वल जारिल जुनुब, और इसी तरह से तुम्हारे साथ करीबी जो पड़ोसी है मगर वो रिश्तेदार नहीं, उसके साथ एहसान। वह साहिबु बिल जंब, और इसी तरह से तुम्हारे बाजू में वक्ती तौर पर तुम्हारा कॉलीग है, क्लासमेट है, या तुम्हारे काम काज करने वाले साथी हैं, तुम्हारे साथ में बैठा उठने वाला है, इसके साथ एहसान करो। और साथ में रहने वाले, पहलों में रहने वाले पड़ोस के ताल्लुक से अहले इल्म ने लिखा है कि बीवी भी तुम्हारे पड़ोसी है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी पड़ोसन है, शौहर तुम्हारे लिए पड़ोसी हैं, हर एक दूसरे के लिए पड़ोसी की तरह हैं, उसके साथ एहसान किया करो। सारे रिश्तेदार व अकारीब आ गए। वब्न सबील, इसी तरह से मुसाफिरों के साथ एहसान करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे हाथ के अंडर में काम करने वालों के साथ एहसान किया करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। इन एहसानात के लिए रुकावट क्या है? आखिरी टुकड़े में गौर करें, आयत के आखिरी टुकड़े में गौर करें, तवज्जो चाहूंगा। आखिरी टुकड़े में गौर करें। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता जिसके दिल में तकब्बुर गुरूर हो, क्योंकि तकब्बुर और गुरूर की वजह से एहसान को रोका जाता है। एहसान करते हुए रुकावट यही गुरूर और तकब्बुर है। गुरूर में आके निखवत में चूर होके वो कहता है उन्हें क्या है, वो क्या है, ये तो मेरा मुखालिफ है, वो मेरा दुश्मन है, इसने वो किया है, अब इंतकाम का मौका मिला है, अब इंतकाम में आगे बढ़ जाता है। एहसान नहीं है, एहसान नहीं है। याद रखो, हर चीज में एहसान किया करो। अल्लाह ने कहा है एहसान तुम हर चीज में जरूरी करार दिया है। हाज़रीन, अब आइए
शरीयत में एहसान के मकामात कहां कहां पर कौन से मुकाम पे एहसान करना है, एहसान किनके साथ, हर एक के साथ, हर एक पर, और कब कब एहसान करना है। आइए ये बात कहकर बात खत्म कर दूंगा। कब कब एहसान, ये बहुत अहम है। सबसे पहली बात, इंसान के अखलाक को, मेयार को पहचानना चाहते हैं, इंसान के उसकी मेंटालिटी और उसके फितरत और नेचर को समझना चाहते हैं, इंसान कितने नेकोकार है पहचानना मालूम करना चाहते हो, उसके साथ मामला करो। कर्ज दो, कर्ज देने के बाद कर्ज कैसे वो लौटाता है ये देखो। हाँ, तो याद रखो इंसान मेयारी होगा जो वक्त पर कर्ज अदा करे। कर्ज लेते वक्त तो बड़ी अपनाइयत मोहब्बत थी, हाँ, और बड़े अच्छे अंदाज में तुमने कर्ज लिया, और वापसी में देते हुए बेचारा जो दिया है चप्पल घिस जाए, मांगते मांगते उसकी जबान सूख जाए, हलाक सूख जाए, और उसके कर्ज उसको वापस ना मिले। याद रखो जो कर्ज लेके जानबूझ के टाल मटोल करता है, देता नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फकत हल्ला इर्दुहु, उसकी इज्जत और आबरू को नीलाम करना, उछालना जायज है। आप सरे आम ऐसे इंसान को बदनाम कर सकते हो कि फुला आदमी मेरा कर्ज लेके नहीं दे रहा है, वो मेरा कर्ज लेके जानबूझ के टाल मटोल कर रहा है। और अगर वाकई इंसान मजबूर है, देना चाहता है, नियत है, दे नहीं पा रहा है, तो उसके ताउन करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। और उसके हेल्प में जो लोग साहिबे हैसियत है, ज़कात दे सकते हैं, ऐसे मकरूजीन को ज़कात दिया करो, भारी भरकम रकम ही से ही ज़कात दिया करो। और जो कर्ज खा है उस कर्जदार को मोहलत दिया करो। नबी ने फरमाया जो कर्जदार को मोहलत देता है, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला उसको मोहलत देगा और उसको नूर के मेंबरों में दाखिल फरमाएगा, और उसके लिए बड़ा अजर है, दुगना अजर है, और जितनी मोहलत देगा सवाब मिलेगा उसको सदक़े का। लेकिन कर्ज लेने वाले को चाहिए जब वक्त हो जाए आगे बढ़ के वो खुद कर्जदार को जाकर, कर्ज खा को जाकर रिक्वेस्ट करें। ये उल्टा मामला है, कर्ज खा पूछते रहता, ये फोन भी नहीं उठाता है। हाँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, जो कर्ज जिससे लिए हो उसके जाकर तुम क्या कहो, उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करो, मन्नत से समाजत करके वक्त ले लो, लेकिन तुम तो फोन नहीं उठाते हो। ये तुम्हारी गलती है, याद रखो। इसीलिए आज माशरे में सूद जो आगे बढ़ रहा, क्यों जानते हैं? सूद को खत्म करने के लिए दो ही रास्ता है। एक सदका व खैरात, हर आदमी सदका व खैरात नहीं ले सकता। दूसरा रास्ता है कर्ज। अब क्या हो गया है, कर्ज देने के बाद सोचता है भाई कहीं को खामा खामे, अरबी में कहा जाता है अल कर्द मिक़रादुल मोहब्बा, कर्ज मोहब्बत को काटने की कैंची है। कर्ज देने से पहले बड़ी मोहब्बत, अपनाइयत, उसके बाद देखो दुश्मनी, अदावत, नफरत आ जाती है। नबी ने फरमाया इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि लमक़ाल, साहिब हक जो कर्ज दिया है तुम नहीं दे रहे हैं, उसको हक है बोलने का हक है। नबी के सामने नबी ने कर्ज लिया का आदमी से आके वो कुछ जबान दराजी कर रहा था, नबी ने कहा खामोश रहो। साहबा इकराम को गुस्सा आया, नबी ने कहा नहीं खामोश रहो, उसको हक है बोलने का, हक दो, बोलने दो। और आज तो उल्टा है, बोलती बंद कर दी जाती है। कर्ज लेने के बाद फिर वो मांगने गया, पूछने गया तो उसी पर जोर जबरदस्ती होती है। याद रखो मेरे भाइयों, ये बहुत गलत चीज है। इंसान को पहचानना चाहते हो, कर्ज की अदायगी, नबी ने फरमाया कर्ज की अदायगी में एहसान करो। कैसे एहसान? कर्ज दिया है, देने वाले का एक्स्ट्रा लेने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि तुम कर्ज देते वक्त पर और अच्छे तरीके से अदा करो। नबी ने फरमाया, नबी की हदीस है इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम क़दाअ, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, वो आदमी अखलाक के किरदार का मेयारी है जो कर्ज लेने के बाद अच्छे तरीके से अदा करता है। नबी ने हदीस कब फरमाई मालूम है? सही बुखारी की हदीस है। मुकम्मल हदीस यूं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कर्ज लिए थे और एक बकरी का या ऊंट का बच्चा लिए थे, अब उसको वापस करना था। नबी के पास जब वो आया मांगने के लिए तो देखिए कोई बच्चा नहीं है, सब बड़े बड़े हैं। नबी ने कहा कि बड़ा ही दे दो, बच्चा नहीं। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल आपने बच्चा लिया था और इसको आप बड़ा देंगे? कहा कि हाँ, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जितना लिया उससे बढ़ के दे, लेकिन देने वाले की नियत नहीं होना चाहिए, फिर वो सूद हो जाएगा। हाँ, सूद हो जाएगा।
कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फहुवा रिबा, हर वो कर्ज जो नफा लाए वो सूद है। हाँ, देने वाले की नीयत ना हो और जो अदा करने वाले को चाहिए कि अच्छे अंदाज में अदा करें, तो कर्ज की अदायगी में एहसान के मकामात में से दूसरी बात यह है कि एहसान इंसान को अपने दुनियावी मामलात में एहसान करना चाहिए, काम काज ड्यूटी इसमें एहसान होना चाहिए। एहसान के मतलब क्या जानते हैं? हक के वाजिब से बढ़ के देना। क्या है? हक के वाजिब से बढ़ के देना। फर्ज अदा करना ये तो आप पर है, जरूरी है। आपने नवाफिल भी पढ़ा तो एहसान है रब के साथ, खालिक के साथ एहसान है, आपने नवाफिल और सुन्नतों के एहतमाम किया। ये जो लोग कहते हैं फर्ज अल्लाह के लिए, सुन्नत नबी के लिए और नफिल अपने लिए, ये गलत बात है, गलत तकसीम है, याद रखो। सब अल्लाह के लिए पढ़ना है। फराइज के अलावा हक के वाजिब से बढ़ के आपने इबादत की है। फर्ज सदका तो ज़कात तो देना है, एक्स्ट्रा आपने सदका किया है, ये एहसान है। फराइज तो अदा करना है, फराइज के साथ साथ आपने नवाफिल भी अदा किया, ये एहसान है। ऐसे ही मामला इंसानों के साथ है। आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की है, घड़ी क्या टाइम है, 1 मिनट आगे नहीं बढ़ना है। वो तो फर्ज आपको अदा करना है और अल्लाह के पास जवाब देना है। 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा ड्यूटी कर दो ना, हाँ ये एहसान है, ये एहसान है, याद रखो। आप चाहे किसी जगह पढ़ा रहे हो, कहीं ड्यूटी कर रहे हो, कहीं खिदमत कर रहे हो, नाप तोल के ड्यूटी मत किया करो। ये तो आप पर फर्ज है, आपने जो कमिट किया है एक्स्ट्रा करो। एहसान इसी का नाम है, यही एहसान है, तब जाकर आपको फायदा होगा। अल्लाह आपको चाहेगा, पसंद करेगा और आपका फायदा होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, बेहतरीन आयत है हर मामले में एहसान, वला तनसाउल फद्ल बैनकुम, आपस में एक दूसरे के साथ एहसान करने को भूलो मत। आपस में एक दूसरे के साथ फजलो एहसान का मामला करो, फजल किया करो। आपके पास मजदूर ने मजदूरी की है, उसका हक है, उसको 500 रुपये आपको देना है, आपने उसको 50 रुपये ज्यादा दिया, ये एहसान है। वो 500 रुपये उसका हक के वाजिब है, हक के वाजिब से बढ़ के आपने दिया, ये एहसान है, ये एहसान है। एहसान हर मामले में बहुत जरूरी मेरे भाइयों, याद रखिए। एहसान क्या करना है, एहसान के मकामात में से मामलात में एहसान देखो। बीवी, जब उसको बीवी बनाकर रखो तो एहसान के तो बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं। शौहर, जब शौहर बनाकर रखो बहुत ज्यादा एहसान के मुस्तहिक हैं। शरीयत तो ये कहती है कि भाई जब जुदाई हो, मियां बीवी जुदा हो, अल्लाह ना करे तलाक और खुला की नौबत आ जाए, ऐसे वक्त में एहसान करो। अल्लाह अकबर, एहसान करो ऐसे वक्त में। कहा कि फइम्साकुम बिमारूफ औ तसरीहुम बेएहसान, इम्साकुम बिमारूफ, अगर तुम बीवी बनाकर रखते हो, शौहर बनाकर रखते हो, भले तरीके से रखो, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। एक दूसरे के हुकूक के ताल्लुक से अल्लाह से डरो। इसीलिए निकाह की महफिल में 4 बार वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह कहा जाता है। खुतबाए निकाह में, खुतबाए जुमा में 4 बार वत्तकुल्लाह है। और ये कहा जाता है तसालूना बिही वल अरहाम, रिश्ते नाते के ताल्लुक से अल्लाह से डरा करो। याद रखो, बनाकर रखो बीवी शौहर तो एहसान के साथ, औ तसरीहुम बेएहसान, नहीं बात बननी पड़ रही है, एक दूसरे पर जुल्म ज्यादती नहीं, एहसान के साथ छोड़ो, एहसान के साथ मामला करो, भले तरीके से छोड़ दिया करो। और नबी ने फरमाया वलिल मुतल्लकात मताउन बिल मारूफ, कहा कि मुतल्लकात जो औरतें हैं उनको कुछ माल मता दे दिया करो। अगर तलाक दे रहे हो तो माल मता दे दिया करो, और अगर खुला है तो महर वापस कर दिया करो, महर वापस कर दिया करो। अल्लाह अकबर, ये एहसान है इस्लाम की निगाह में। जब बीवी शौहर आपस में जुदा होते वक्त एहसान है, तो बीवी शौहर आपस में रहते हुए कितना एहसान करना है। हाँ, यह है मूसा अलैहिस्सलाम कैसे एहसान किए देखो। जब शेख मदइन यानी शुएब अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बातचीत हुई, कहा कि मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हो, महर क्या दोगे, महर क्या दोगे। आज हम लोग निकाह से पहले क्या पूछते हैं, निकाह से पहले दावत कहां करोगे, जोड़े कितने, घोड़े कितने, कितने लोगों को खिलाओगे, कहां दावत करोगे, पहले कहां। आज हम लोगों को दिखाना ज्यादा है। हाँ, डेकोरेशन, मैं तो कहता हूं डेकोरेशन नहीं, डेकोरेशन को कहता हूं मैं बिगाड़ के डेकोरेशन। मेरी शान देखो,
क्या ये डेकोरेशन में, लाइटिंग में इतना खर्चा कर रहे हो? हाँ, निकाह को आज मुश्किल बना लिए हो। निकाह से पहले पूछना है महर क्या दोगे? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता है। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कुछ नहीं, मैं तो भाग के आ गया हूं। आके ठीक है, मेरे पास 8 साल या 10 साल मजदूरी करना। और उसके बाद कहा अय्यम्मल अजलाइन क़दैतु फला उद्वान अलै, इन दोनों में से 8 या 10 जो भी पूरा करूं मेरे लिए उज़्र है, मेरे ऊपर कोई जुल्म जबरदस्ती नहीं है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम अगर चाहते 8 साल करके चले जा सकते थे, लेकिन उनका एहसान देखो, उन्होंने 10 साल किया। ये अंबिया की सुन्नत है, अहले इल्म का तरीका है। आप एहसान का मामला किया करो, हर मामले में एहसान को जरूरी करार दिया करो। याद रखो मेरे भाइयों, दुश्मनी में एहसान, अल्लाहु अकबर, दुश्मन को मारते वक्त एहसान, जानवर को कत्ल करते वक्त एहसान। वही हदीस दोबारा देख लें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, से मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह ताला ने एहसान को हर चीज पर जरूरी करार दिया है। फैदा कतलतुम फअहसिनुल क़ितला, जब जंग के मैदान में दुश्मन के साथ मामला आए तो उसके साथ एहसान का मामला किया करो। आजकल के जंगों का हाल देख लिया करो, किस तरह से बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, औरतों के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है। याद रखो, इस्लाम यह कहता है जंग के मैदान में दुश्मन के साथ भी एहसान किया करो, औरतों को कत्ल ना करो, बच्चों पर बमबारी मत किया करो, और बूढ़े कमजोरों पर जुल्म ना किया करो, इबादत गाहों को हलाको बर्बाद ना किया करो, इबादत गाहों में इबादत करने वालों को छेड़खानी मत किया करो। और आज सारी चीजों को पामाल किया जा रहा है। याद रखो, इख्तिदार और इख्तियार उनके पास भी था, उनके पास भी था, वापस आना है। याद रखो, हर एक का बदला एक दिन चुकाना पड़ेगा। इसलिए आज अगर इख्तिदार तुम्हारे पास है, इख्तियार तुम्हारे पास है, हुकूमत सल्तनत तुम्हारे पास है, आज तुम्हारे पास हथियारात हैं, तो जो चाहे मत किया करो। अल्लाह है, अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह क्यों चाहे तो चुटकियों में इनको खत्म कर सकता है ना, हवा में इनको हवा कर सकता है। यह अल्लाह ताला की आजमाइश है, हमारे लिए भी, जालिम के लिए भी, मजलूम के लिए भी। इससे पहले मैंने अर्ज किया, जालिम को ढील देता है और मजलूम के सब्र की आजमाइश करता अल्लाह ताला, याद रखो। और जालिम को देखता जुल्म कितना करना चाहता है, जुल्म। याद रखो, एहसान जंग के मैदान में दुश्मन के साथ भी एहसान, और जानवरों के साथ भी एहसान। कहा कि जानवर को ज़बा करते वक्त चाकू को तेज करो, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बा मत किया करो, और जानवर ठंडा होने से पहले उसकी चमड़ी ना निकाला करो। अल्लाह अकबर। और दुश्मन को कत्ल होने के बाद उसके जिस्म से, उसके लाश से छेड़खानी मत किया करो। मर गया है तो उसको छोड़ दो, मुसला नहीं करना है, जमाने जाहिलियत में होता था, मुसला नहीं करना है। याद रखिए मेरे भाइयों, हाज़रीन गिरामी, एहसान है, इतने सारे एहसानात हैं। इन एहसानात में से एक बात याद रखो, बातचीत में एहसान। बातचीत में एहसान, बातचीत में एहसान किसको कहा जाता है? यानी बोलो तो एहसान के साथ, इंसाफ के साथ बोलो, बोलो इंसाफ के साथ, एहसान के साथ बोलो। ऐसा नहीं गलत सलत बातों को नकल किया करो, किसी के बारे में बोलते हुए जुल्म ज्यादती से काम लिया करो, किसी के बारे में बोलते ही बड़ा चढ़ा कर बोल दिया करो, किसी अमानत को तुम ज़ाय और पामाल करो। नबी ने फरमाया अल मजालिसु बिल अमाना, मजलिसों में जो बातें होती है वो अमानत की होती है। याद रखिए मेरे भाइयों, इन बातों का ख्याल रखना है। बोलते हुए भी एहसान करो, अमानत का ख्याल रखा करो, बोलते हुए भी एहसान है। अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया, बनी इसराइल से अहद लिया। आज मीडिया में गलत सलत बातों को दिखाया जा रहा है, जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम किया जा रहा है। बनी इसराइल से अल्लाह ने अहद लिया, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों के साथ एहसान की बात किया करो। और दूसरी जगह पर फरमाया वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिया अहसन, अब हमारे उन बंदों से कह दो वो एहसान की बात किया करें, एहसान की बात किया करें। ये जबान हमारी है ना, चलती है, चलती है, कभी थकती नहीं है। जबान पे हड्डी नहीं है, सारा जिस्म थक जाएगा लेकिन जबान कभी थकती नहीं है। याद रखो, तिरमिज़ी की रिवायत है, सुबह सवेरे इंसान जब सुबह करता है उसके सारे जिस्म के आज़ा, सारे जिस्म के आज़ा जबान से फरियाद करते हुए कहते हैं, ऐ जबान
तू अगर सही सलामत है हम सही सलामत, तू अगर बिगड़ जाए हम सब बिगड़ जाएंगे, इसलिए तुझसे पनाह है, तेरी पनाह में है कि तू सही सलामत रह, इसका सही इस्तेमाल किया करो, गलत इस्तेमाल मत किया करो। और नबी ने फरमाया कल क़यामत के मैदान में सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में जो जाएंगे इसी जबान का गलत इस्तेमाल की वजह से, इसी जबान के गलत सलत इस्तेमाल की वजह से। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, याद रखिए जबान को हम कंट्रोल में रखें, जबान को अनाप शनाप आज हम चलाते हैं, कितनी बातें बिगड़ती है सिर्फ एक बात की वजह से, और कितने बड़े बड़े मामला सॉल्व हो जाते हैं एक सॉरी और एक सलाम की वजह से। लेकिन शैतान, इन्ना शैतान, आगे फरमाया इन्ना शैतान यंज़उ बैनहुम, शैतान तुम्हारे दरमियान इन बातों को हवा देता है, ये सोचता है कि मैं आगे बढ़ के क्यों सलाम करूं, क्यों मैं सॉरी बोलूं। एक सॉरी से, एक सलाम से कितने बरसों की दुश्मनियां खत्म हो सकती है। जबान याद रखो, इसका सही इस्तेमाल करो, यही जबान जिससे इंसान ईमान अस्कार तिलावत भी करता है, इसी जबान से कुफ्रिया शिरकिया गाली गलोच की बातें भी करता है। तो जबान के इस्तेमाल में एहसान आखिरी बात है, रिश्ते नाते के ताल्लुक से एहसान, और साथ ही साथ हम जब दावत और तबलीग का काम करते हैं ना, उस पे भी एहसान। एहसान, आज हम मजहब के हवाले से बात करते हैं तो दुश्मनी की बात करते हैं, मजहब की बात आए तो दुश्मनी, नफरत, अदावत, काटना, मारना, पीटना, यही बातें होती है। आज बड़े बड़े इज्तिमाआत हो रहे हैं और बड़े बड़े जो है सभाएं हो रही हैं, और बड़े बड़े सभाओं में, इज्तिमाआत में मजहब के हवाले से मारना, पीटना, काटना, तोड़ने की बातें हो रही है। याद रखो, मजहब के हवाले से सबसे पहले एहसान होना चाहिए, सबसे पहले एहसान होना चाहिए। दावत तबलीग में एहसान, अल्लाह ने क्या फरमाया कि देखो, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, यानी किसी के साथ डिबेट करो दावत तबलीग में तो एहसान के तरीके से किया करो। वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती हिया अहसन, भले तरीके से, एहसान के तरीके से दिफा करो, डिफेंस करो। ऐसा ना हो कि डिफेंस में जाकर तुम जालिम बन जाओ, हद से आगे बढ़ जाओ, नहीं। डिफेंस में भी हमें चाहिए कि सही तरीके पर रहें, बोलो और दावत तबलीग का काम करो, जो भी चीजें हो उनके साथ एहसान का मामला होना चाहिए, एहसान के साथ हर तरह के मामलात करने चाहिए। याद रखें मेरे भाइयों, एहसान के जराए चार हैं, चार जराए से हम एहसान कर सकते हैं। इन चार जराए को हमें चाहिए कि अच्छे अंदाज में करना चाहिए। चार जराए क्या है? पहली बात तो खुलासा कलाम ये हुआ कि हर चीज में परफेक्शन एहसान। तुम दुनियावी मामलात में हो, इबादत हो, अकायद हो, मामलात हो, तिजारत हो, कारोबार हो, तालीम हो, तदरीस हो, हुनर हो, हर चीज में एहसान। मुसलमान परफेक्ट बनना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मुसलमानों के तिजारत और कारोबार बेढंगे, मुसलमानों के तालीमी इदारे बेढंगे, मुसलमानों के कामकाज अखलाक किरदार बेढंगे, मुस्लिम महल्ले सबसे ज्यादा गंदे, हर तरह के बेढंगे इंसान अगर हैं तो मुसलमान के इदाराजात हैं। जबकि सबसे ज्यादा परफेक्ट हमें होना चाहिए, हमें होना चाहिए, तब जाकर आप कामयाब होंगे। आज हम हर चीज में देखते हैं सबसे मेयारी क्या है। हाँ, जूता भी खरीदने जाते तो सबसे मेयारी क्या है, सबसे अच्छा परफेक्ट कौन सा है ना। इसीलिए याद रखो मेरे भाइयों, तो उसी को लोग आज पसंद कर रहे हैं जिसमें कमाल दर्जे की हो। कमाल को अपनाया करो, और ये चार जरिए से हो सकती है। एक चीज ताकत के जरिए से एहसान, अल्लाह ने आपको ताकत और कुव्वत दी है, उसका गलत इस्तेमाल मत करें, गलत इस्तेमाल मत करें। इस ताकत के जरिए से आप जुल्म का खातिमा करें, ना कि आप जुल्म किया करें। अल्लाह ने आपको ताकत और कुव्वत दिया, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, इस्तेसाल ना हो। और दूसरी चीज, माल के जरिए से एहसान। अल्लाह ने आपको माल दिया है, दौलत दिया है, गरीबों पर खर्च किया करे, गलत राहों पर ना लुटाया करे। माल है, मेरा माल मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, है ना आज का स्लोगन है। हाँ, मेरा माल मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। ना माल मेरा है, ना जिस्म आपका है, अल्लाह के पास से खरीद के लेकर आए हो। हाँ, अल्लाह ताला ने आपका जिस्म आपको मुफ्त में दिया, अमानत है, ये अल्लाह को वापस करना है। और माल भी अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ा फजल है, करम है। याद रखो, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा कल क़यामत के मैदान में। बनी आदम के कदम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक उसके जिस्म के बारे में, उसकी उम्र के बारे में, उसकी जवानी के बारे में, उसके माल के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। हाँ, माल के जरिए से एहसान,
तीसरी चीज, इल्म के जरिए से एहसान। इल्म का गलत इस्तेमाल मत करो। इल्म का गलत इस्तेमाल ये गलत है, इल्म का सही इस्तेमाल ये एहसान है। अल्लाह ने इल्म दिया, हुनर दिया, आप अपने इल्म और हुनर का के जरिए से एहसान किया करो। अल्लाह के हक में भी, अल्लाह के बंदों के हक में भी एहसान किया करो। और गलत इस्तेमाल, आपको अल्लाह ने इल्म दिया, हुनर दिया, आपके पास टेक्नोलॉजी है, हथियारात है, आपके पास इल्म है, हुनर है, प्रोडक्ट्स है, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ये एहसान नहीं, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। आखिरी चीज, एहसान में इंसान का असर रसूख, इंसान का पोस्ट, इंसान का ओहदा, इंसान का मनसब, इंसान के हुकूमत, इंसान के जो अल्लाह ताला ने हुकूमत दिया है, सल्तनत दिया है, आपके बारे अल्लाह ताला इसके बारे में पूछेगा, जवाब देना पड़ेगा। इसके जरिए से एहसान करो, ना कि इनका गलत इस्तेमाल किया करो। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको हर मामले में एहसान को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।